So, good morning students. Today I will perform experiment number 6 and name of this experiment is law of resistance in series. Already you have to know resistance. Resistance are two types. Number one, law of resistance in series, and number two, law of resistance in parallel. So, this experiment we have to perform law of resistance in series. Student, already you have to know, in theory we have to use two or three resistance. So those resistance we have to connect it in series, one by one. Resistance 1, resistance 2, resistance 3, and in this way. Resistance 1 connected to resistance 2, resistance 2 connected to resistance 3, in this way. And these all resistance we have to connect it in the circuit. So in this experiment we have to use unknown resistance, then power supply, tap key, rheostat, voltmeter, ammeter, and resistance wire. Already all instrument, all apparatus, all devices you have to know. And in this experiment we have to use formula Rs equal to R1 plus R2. When we have to connect three resistance, so our formula is Rs equal to R1 plus R2 plus R3. When we have to connect four resistance, so our formula Rs equal to R1 plus R2 plus R3 plus R4. But in this experiment, in lab we have to use only two resistors. So this Rs is the equivalent resistance in series. R का मतलब resistance, S का मतलब series. So equivalent resistance in series. And R1 and R2 be the two resistors which are connected in series in the circuit. So this is the experiment number 6. Here our statement of law of resistance is Rs equal to R1 plus R2. Student, this formula is very important for your view of examination in MCQ टाइप. ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है. इन द एग्जामिनेशन यू हैव टू गिवन 2 रेजिस्टेंस और 3 रेजिस्टेंस एंड कैलकुलेट और डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज. तो इस टाइप का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकता है और उसके लिए आपको समझो रेजिस्टेंस का 3 वैल्यू दिया रहेगा तो Rs इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर सकते हैं. So student, you have to remember this formula Rs equal to R1 plus R2 so on up to Rn. तो जितना आप रेजिस्टेंस यूज करोगे उसके लिए Rn यूज करोगे तो सब रेजिस्टेंस उसमें आ गया. नाउ आई परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट. दिस इज द सर्किट डायग्राम and when we connect the circuit as shown in circuit diagram. So in this experiment we have to use Eureka wire, that is standard wire, then copper wire, normal wire, then voltmeter, range of voltmeter 0 to 5 volt and one piece is used. Ammeter, range of ammeter 0 to 1 ampere, here is also one piece used. And rheostat, the rheostat, range of rheostat is 50 to 110 ohm, and battery, that is the power supply. So in this experiment we have to connect the circuit as shown in circuit diagram. So student, this is the first part of the circuit diagram. Listen here. So in this circuit we have to use only one unknown resistance. So this is the unknown resistance, and this unknown resistance, this first terminal and second terminal, and this unknown resistance connected to the voltmeter. So this voltmeter negative terminal connected to the unknown resistance and across battery. So both terminal connected to the positive terminal of the battery and negative terminal of the battery connected to the tap key. Yes, सर्किट बहुत ही सिंपल है. ओम्स लॉ में भी सेम सर्किट अपन ने यूज किया है, खाली उसका रीडिंग अलग अलग आता है. इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ पे अपन ने अननोन रेजिस्टेंस यूज किया है. ओम्स लॉ में भी अपन अननोन रेजिस्टेंस यूज कर सकते थे या नहीं भी, लेकिन वहाँ पे भी अपन ने अननोन रेजिस्टेंस यूज किया है. यहाँ पे अपन ने ओनली वन अननोन रेजिस्टेंस यूज किया है. सो
ये जो आपको सर्किट दिख रहा है, ये सर्किट देख के आपको कनेक्शन करना है। ये अननोन रेजिस्टेंस, स्टूडेंट लिसन हियर, दिस इज योर अननोन रेजिस्टेंस, दिस इज बोथ टर्मिनल पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू द वोल्ट मीटर्स, वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में कनेक्ट किया है, और वोल्ट मीटर का निगेटिव टर्मिनल अननोन रेजिस्टेंस के निगेटिव को कनेक्ट किया है, और बोथ टर्मिनल कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, पावर सप्लाई के पॉजिटिव को कनेक्ट किया है। देन पावर सप्लाई का निगेटिव टर्मिनल जो है ये टैप क्यू में कनेक्ट किया है। यहाँ पे ये देखो, ये पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई का ये जो कनेक्शन है वो टैप क्यू को दिया है, टैप क्यू के पहले टर्मिनल पे, और दूसरा टर्मिनल कनेक्टेड टू द ग्राउंड ऑफ द रियोस्टेट के ग्राउंड में कनेक्ट किया है ये बेटा यहाँ पे, ये देखो। उसके बाद रियोस्टेट का वेरिएबल जो है एमीटर के निगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया है। ये दिस इज द रियोस्टेट, वेरिएबल ऑफ द रियोस्टेट, एंड दिस इज द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द एमीटर। सो आफ्टर दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एमीटर कनेक्टेड टू द अननोन रेजिस्टेंस, एमीटर कनेक्टेड across the unknown resistance and voltmeter here. Listen here. So this is the circuit diagram, and this circuit diagram we have to connect properly as shown in diagram. This is the circuit of this experiment, law of series resistance, and this circuit we have to connect it with the help of circuit diagram. तो ये सब आपको पीपीटी में दिया है। ये अननोन रेजिस्टेंस है, पावर सप्लाई है, वोल्ट मीटर है, एमीटर है, टैप की है, रियोस्टेट है, और हर एक का इसमें आपको रेंज दिया है। जैसा वोल्ट मीटर का रेंज है 0 to 5 वोल्ट, और उसका लिस्ट काउंट रहेगा 0.1 वोल्ट। एमीटर का है 0 to 5 एम्पियर, ये उसका रेंज हो गया एमीटर का, और उसका लिस्ट काउंट है 0.1 एम्पियर। और ये टैप की है, रियोस्टेट रेंज है 50 ओम टू 1110 ओम, और अननोन रेजिस्टेंस का आपको वैल्यू निकालने का है। नाउ आई परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, लिसन हियर स्टूडेंट। First we will take some observation. This is the physical observation. Listen. So in this experiment, observation and calculation, range of voltmeter. Here we will take 10 volt, range of emitter 20 ampere. So here we will use only 0.1 least count of the ampere and 0.2 this is the least count of voltmeter. अभी अपन ने यहाँ पे 10 वोल्ट का और 20 एम्पियर का एमीटर और वोल्टमीटर शो किया है इन द पीपीटी, बट वी हैव टू यूज ओनली 0 to 5 एम्पियर, 0 to 5 एम्पियर रेंज का एमीटर यूज किया है, और 0 to 5 वोल्ट का वोल्टमीटर यूज किया है। सो ऑल दिस वैल्यू वी हैव टू राइट ऑन योर पीपीटी, कीपिंग योर माइंड। ये पीपीटी में मैंने सब शो किया है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो ये आपका सर्किट हो गया है, उसमें लिस्ट काउंट ऑफ वोल्टमीटर 0.2 वोल्ट और लिस्ट काउंट ऑफ एमीटर 0.1 वोल्ट। उसके बाद ईएमएफ ऑफ द बैटरी, आप जितना वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 वोल्ट तक मैक्सिमम आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दिस इज़ द 1.5 और 0.2 to 1.5 वोल्ट, ये अपन ईएमएफ का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लिसन हियर, हियर इज क्वेश्चन अराइजेस इन योर व्यू ऑफ एग्जामिनेशन इन एमसीक्यू, फुल फॉर्म ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, और उसके लिए आपको ऑप्शन दिया रहेगा 4 ऑप्शन, उसमें से आपको एक आंसर करेक्ट करने का है या क्लिक करना है उसके ऊपर। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ का मीनिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ध्यान में रखना है। ये पिछले 2 साल से क्वेश्चन आ ही रहा है, क्योंकि ये आपको 10th में भी हो गया है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएमएफ।
So student, now listen here, first table, first observation table. Serial number, voltage denoted by V, and the volt is the unit of voltmeter. Then current measure with the help of ammeter, and unit of ammeter is ampere, that is shortly capital A. Resistance shows or symbol of resistance R, and unit of R is ohm, keeping your mind. Then मीन रेजिस्टेंस. सो आपको सेम प्रोसेस यूज करने का है. इसमें से आपको वोल्टेज वेरी करने का है, इंक्रीज करने का है, और ये वोल्टेज इंक्रीज करने के बाद आपको एमीटर में उसका रीडिंग दिखेगा. जैसा मान लो अपना पहला रीडिंग अपन ने 0.4 तक वेरी किया है, तो उस समय अपना 2 एम्पियर करंट बता रहा है, और 2 एम्पियर करंट बताएगा तो इसका फार्मूला आपको पता है. आर का वैल्यू आपको बाय ओम्स लॉ के वजह से निकालने का है. तो आर इक्वल टू फार्मूला आपको ऑलरेडी यू टू नोन, आर इक्वल टू वी अपॉन आई. ये फार्मूला यूज करके आपको ये सब वैल्यू निकालने का है. सो फर्स्ट वोल्टेज 0.4 वी हैव टू इंक्रीज. सो एट दैट टाइम वी गेट 2 एम्पियर करंट and 0.2, this 0.4 upon 2, so our answer is 0.2. In this way we will take 1 to 4 रीडिंग, 1 से 4 तक अपने को रीडिंग लेना है. इसमें वोल्टेज आपको इंक्रीज करने का है, एंड वोल्टेज यदि इंक्रीज किया तो अपने को कभी कभी करंट भी इंक्रीज करना पड़ेगा. करंट इंक्रीज करते हैं अपन रियोस्टेट से बेटा. तो 0.6 का ये सेकंड रीडिंग रहेगा, तो आपको करंट 3 मिलेगा उसमें, 3 एम्पियर. सो एट दैट टाइम और रेजिस्टेंस इज 0.2. सो इस तरीके से आपको वोल्टेज बढ़ाना है, या करंट यदि रियोस्टेट से बढ़ाओगे तो आपको वोल्टेज शो हो जाएगा. उसके बाद तुरंत आपको उसका मीन निकालना है. ऐसा 1 to 4 रीडिंग आपको लेना है. यू कंप्लीट 1 to 4 रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस आर विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ. R इक्वल टू वी अपॉन आई, दिस इज और ओम्स लॉ, न्यूमेरिकल फार्मूला फॉर ओम्स लॉ. ये फार्मूला यूज करके अपने को R का वैल्यू निकालने का है. इसमें V का और I का वैल्यू आपको पता होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट. आफ्टर दैट यू हैव टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस एंड मीन रेजिस्टेंस. उसका चारों का मीन निकालना है, चारों का एडिशन करने का है आपको 4 रीडिंग लेने के बाद ओनली फॉर रेजिस्टेंस का, और उसके बाद आपको 0.2 ओहम ये आपका मीन मिलेगा. अभी ये 0.2 आपका मीन रेजिस्टेंस आया, तो सेकंड ऑब्जर्वेशन टेबल में ये जो रेजिस्टेंस है, लिसन हियर स्टूडेंट, ये रेजिस्टेंस की जगह पे आपको 2 रेजिस्टेंस यूज करना है. तो ये 2 रेजिस्टेंस आप इस प्रकार यूज कर सकते हैं. सो So student, listen here for second observation table. In this way we have to use 2 unknown resistance. This is R1 and this is R2. In previous observation table we have to use only R1, that is only one resistance, keeping your mind. But
in case of second part we have to use two resistance. तो इस तरीके से आपको दो रेजिस्टेंस यूज करना है और सेम टाइप में आपको रीडिंग लेने का है V और I का बेटा, ध्यान में रखो. सो दिस इज द सर्किट डायग्राम और दिस इज द सर्किट फॉर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग सर्किट डायग्राम. कीपिंग योर माइंड. So in this way you will take 4 reading for second part and 4 reading for first part, and then you have to calculate up to mean resistance, that is R1 for first part and R2 for second part, keeping your mind. And this R1 and R2 reading combined and your answer for equivalent resistance in series R1 plus R2. We have to consider the R1 reading is 0.2 ohm and R2 is 0.7. So our answer RS equal to 0.9 ohm, and this is your resistance in series. उसके बाद ये जो थर्ड टेबल है इसके लिए आपको वोल्ट मीटर का रीडिंग यहाँ से ले सकते हैं. इसका दोनों का एवरेज निकालो. 0.4 और 1 कितना हो जाएगा 1.4 और 1.4 के बाद आपका रीडिंग आएगा सपोज 1.4 दिस इज 1.7 हो जाएगा. देन 0.6 पहले पार्ट का रीडिंग, सेकंड पार्ट का 2.6 हो गया तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1.3. देन 1.2 ये हो जाएगा तुम्हारा 1.6 है 0.6. देन 1.2 प्लस 4 5.2, तो दिस रीडिंग इज 2.6 वोल्ट. कीपिंग योर माइंड इन दिस वे. ये कैसा रीडिंग निकालेंगे बेटा? वोल्टेज का थर्ड टेबल का जो पहला रीडिंग पहले पार्ट में 0.4 और सेकंड पार्ट का 1, तो 1 प्लस 0.4 1.4 हो गया और डिवाइड बाय 2 करो, मतलब ये सेम रीडिंग है 0.4 और 1 फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट एडिशन करो, डिवाइडेड बाय 2 करो, वो रीडिंग यू हैव टू राइट डायरेक्टली हियर 0.7. और दिस रीडिंग अकर्स फ्रॉम बाय यूजिंग द एक्समेन. एक्समेन यूज करने के बाद भी ये रीडिंग आपको मिलेगी. वो यदि आपको एक्समेन परफॉर्म थर्ड पार्ट के लिए नहीं करना है तो ये पहला रीडिंग टेबल 1 का और टेबल 2 का पहला रीडिंग उसको एडिशन करो और एडिशन करने के बाद डिवाइडेड करो और वो एवरेज में रीडिंग यहाँ पे लिखो, तो ये हो गया उसका रीडिंग. देन करंट का 2 to 4 डिवाइडेड बाय 2 एम्पियर. देन 3 to 5, so you get 2.5 ampere. Then 9, so 4.5. Then 5. Keeping your mind in this way. So ये भी रीडिंग मैंने क्या किया, करंट का पहला रीडिंग पहले पार्ट का और सेकंड पार्ट का दूसरा रीडिंग उसको एडिशन किया है. जैसा ये पहले पार्ट का 2 है, दूसरे पार्ट का 2 है, 2 4 हुआ, 4 हुआ, 4 डिवाइडेड बाई 2 करो और वो 2 यहाँ पे लिखो, करंट का रीडिंग आ गया. अभी आप रेजिस्टेंस का रीडिंग आर का रीडिंग निकालते हैं तो ये 0.2 है और ये 0.05 कितना हो गया 0.25. 0.25 तो यहाँ आएगा बेटा आपका 1.125. 25 का हाफ 12.5, सो यू गेट 0.125. उसके बाद 0.2 0.13, सो यू गेट 0.15. आफ्टर दैट 85.85, so you get 4.5. This is ohm. Keeping your mind, this is the ohm. Ohm is the unit of resistance. This is denoted by
R equal to V upon I ohm. After that 3, 6, 9, 4.5. So this is also 4.45 ohm. After that, this complete figure resistance 0.125, 0.15, 0.425 एंड 0.45, इसका एडिशन करके डिवाइडेड बाय 4 करो तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. जैसा ही इसका एडिशन अपन करते हैं, लिसन हियर. Sir, 0.275 ohm, and this is your final answer or average of this part 1 and part 2, 0.275, and this is your result. Keeping your mind, result क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस in series is 0.275 ohm, and this is your answer. So ये आपको रिजल्ट तक कंप्लीट करने का है. उसके बाद आप प्रिकॉशन लिख सकते हैं इसके बारे में. प्रिकॉशन कैसा होगा कि कनेक्शन शुड बी टाइट. कनेक्ट द सर्किट एज पर सर्किट डायग्राम. सर्किट डायग्राम देख के अपन ने कनेक्शन किया है. उसके बाद इन द सर्किट कनेक्शन शुड बी टाइट. कनेक्शन शुड बी टाइट है. कनेक्शन किया है. इसमें वोल्टेज प्रोवाइड इन द सर्किट एज पर इंस्ट्रक्शन इन द प्रोसीजर में जैसा इंस्ट्रक्शन दिया है वो तरीके से अपन ने इसमें वोल्टेज प्रोवाइड किया है. तो वोल्टेज प्रोवाइडेड प्रॉपरली एंड रीडिंग टेक केयरफुली बाय यूजिंग एमीटर एंड वोल्ट मीटर और पावर सप्लाई. तो ये तरीके का आपको प्रिकॉशन राइटिंग करने का है. और जो प्रोसीजर भी है, प्रोसीजर आपको दिया है पेपर में अपना, मैनुअल में आपको प्रोसीजर दिया है. वही प्रोसीजर देख के आपको राइटिंग करना है. इसमें इम्पोर्टेंट ये है क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं ये एक्सपेरिमेंट में. जैसा पहला क्वेश्चन, स्टेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज. सीरीज कैपेसिटेंस का स्टेटमेंट क्या है? तो उसका स्टेटमेंट क्या है बेटा? RS इक्वल टू R1 प्लस R2. इक्विवेलेंट capacitance in equivalent resistance in series is equal to the sum of resistance in series. Sum means addition. Equivalent resistance in series equal to, जैसा आपका फार्मूला है RS इक्वल टू R1 प्लस R2. तो इसमें दो टाइप का क्वेश्चन होता है. एक तो स्टेटमेंट पूछा जाएगा और सेकंड थिंग उसका इक्वेशन पूछा जाएगा. तो ये दो क्वेश्चन हो सकते हैं. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रियोस्टैट. ये रियोस्टैट का फंक्शन क्या है या उसका यूज क्या है? तो रियोस्टैट इज यूज टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द करंट कम करने का, बढ़ाने का काम रियोस्टैट करता है. वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर में अपन वोल्टेज प्रोवाइड कर सकते हैं. एमीटर में करंट प्रोवाइड कर सकते हैं और पावर सप्लाई में करंट प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं. सो स्टूडेंट, आई विल कंप्लीट हियर दिस एक्सपेरिमेंट एज वेल एज 6th experiment. So any problem, any doubt, you ask me. And in the performing experiment, keeping your mind, generally question arises on your way of examination. प्रैक्टिकल के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में. ये चीज़ ध्यान में रखना. फॉर एग्जाम्पल 1 mm इक्वल टू, अभी mm बोलोगे तो आप प्रैक्टिकल में भी एक्सपेरिमेंट में भी है. 1 mm इक्वल टू सेंटीमीटर. 1 mm का सेंटीमीटर कितना होता है? तो ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं. 100 सेंटीमीटर इक्वल टू, या 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर. तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं. सो
ये आपको फर्स्ट चैप्टर में कन्वर्शन फैक्टर आया होगा, तो उसी लेवल पे आपको इसका भी स्टडी करने का है। इसके ऊपर मैं आपको पीपीटी में क्वेश्चन दूंगा, गूगल फॉर्म में भी मैं क्वेश्चन दूंगा। सो स्टूडेंट, टुडे आई स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच।